हाय, नमस्कार. मी दीपेश सुळे आणि माझ्याबरोबर आहेत रमेश शर्मा सर. थैंक यू सो मच. लगा नहीं था कि पहले एपिसोड में ही इतना कुछ जानने मिलेगा, इतना कुछ सीखने मिलेगा और इतना कुछ समझने मिलेगा. सो जब भी ये पहला पॉडकास्ट, हमने पहला टीजर रिलीज किया, तो काफी अच्छे रिएक्शंस आए. काफी हैप्पीनेस शेयर किया गया और यही हैप्पीनेस आप जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं दिल से अच्छा लगा. लेकिन हम ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया. और ऐसा ही सपोर्ट आप और करेंगे और हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके सामने फिर से लेके आएंगे. और काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए. वो हर एपिसोड में हम एक नई चीज आपके सामने लेके आएंगे. बट सर, टीजर पे और एपिसोड्स पे इन ऑडियंस का प्यार हमको बहुत मिला. Yeah. Actually, we are very thankful to you. We have got a good response in the initial stages. This is just a process. Understand that we are also into it, and by the time we reach third, fourth episode, we will be doing very well. And the contents which we have lined up are quite good, and which will interest you. जैसे सर ने कहा, द कंटेंट्स दैट वी हैव लाइंड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. Today what we are bringing in front of you, it's a very interesting topic because it is a topic that is a very close part of our lives. uh, it is something that is very integral. It is something that is very close to each and every one. It is said, and after looking at some people, I can tell you that decision making is simple. And today's episode is dedicated to all those lovely umpires who do a brilliant job. As I said, when I look at them, I feel decision making is simple. Imagine that you appeal for a particular decision to be given, and the umpire, in a fraction of second, just does the action and tells you what the decision is. It's a job that is as good as having a camera lens in your eyes. It is a job that is very responsible because one decision can change many lives. I will also say that once you see this episode, once you learn from this episode, apply that to your life. You know why? Because decision making is simple. We complicate that. We try to put so many layers into our own mind that we are not able to take a decision. But when you look at these, I would say warriors, Yeah, they are like more like warriors because these, they have to take the decision in a split of a second, and which is very hard because when you the moment you take that decision, hundreds of thoughts go on in your mind, and I don't know how they come to the right decision, and most of the time they do land up in with the right decision. yes. So we are going to talk about not just decision making, but we are also going to understand their lives, what it is. Because trust me, in a cricket match, there are many people who together work as a team and together make it a big success. But most of them are the unsung heroes. It is said that it's a very thankless job because you can question a decision, and sometimes that some decisions are not acceptable as well. Then we say that कि यार ये अंपायर ने ऐसा डिसीजन दिया, ये अंपायर ने ऐसा डिसीजन कैसे दिया, etc etc etc. To unfold the stories that were never told, to unfold yet another podcast at The Ball Meets Bold. Today it's my privilege to have Marcus Couto sir with us. Trust me, when he starts talking, I will not talk at all. Because when you talk about a 42 years of experience in umpiring, in
being on different panels, be it BCCI, be it MCA, or be it many prestigious association. Someone who is just not done a job as an umpire, but someone who has also been a mentor to many cricketers. Probably talk about his profile and the stature at he is today, because the one thing that he's earned till date is respect. And I have seen that on a cricket ground, be it as a match observer, be it as one of the panels, one of the umpires who is on the panel of BCCI at the age of 63, someone who has lived a vast career of 42 years. It's time to hear with the man who is there with us. Marcus sir, 42 years of your journey. You've seen, a lot. And I think even if you share that, from that lot, even if you share that 10%, I think our podcast is successful today. Yeah. Very nice of you to invite me. My pleasure to be with you. Actually, umpires do most of the signaling. They hardly talk. Our language is more into signaling. But I think you will make me talk more than you today. That's my job as a podcaster. It will be a pleasure to chat with you. सर, 42 ईयर्स जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बिकॉज हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नई सिचुएशन, और हर दिन एक नया सवाल, क्योंकि आप आप शायद एक ऐसे ही इंसान होंगे कि हर जन आपसे सवाल पूछता है जब वो अपील करते हैं, हाउ इज दैट। तो ऐसे कितने सवाल झेले, और उन सवालों का जो हार्डली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, व्हेन डिड यू स्टार्ट अंपायरिंग, बिकॉज अर्ली एज में काफी सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी आज काफी इंटरेस्टेड है ये सुनने के लिए। एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। तो मैं आज़ाद मैदान में गया था नेट्स प्रैक्टिस पे, ससानियन क्लब जो सचिन तेंदुलकर का क्लब था। तो पहले दिन उन्होंने बोला बैट लेके आया क्या, तो मैंने बोला बैट तो नहीं लाया। तो मैंने शॉप में गया तो बैट का कीमत 50 रुपया था। इट वॉज, मैं उस टाइम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो एक जन ने बोला मेरा बैट लेके आप प्रैक्टिस करो आज के दिन। मेरा बैड लक था कि बैट टूट गया और वो बोला ये पैसा दे दो। भाई वो पैसा देना मतलब मुश्किल था। तो मैं सोचने लगा, तो बाजू में उधर ही आज़ाद मैदान पे ना कोई एक ओल्ड आदमी था, कुछ बात कर रहा था क्रिकेट का। तो मैं जाके खड़ा रह गया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो टेस्ट अंपायर थे, टेस्ट अंपायर मामसा, अहमद AM मामसा। तो उन्होंने मुझे पूछा आपको कुछ लॉस के बारे में मालूम है? हमने नहीं। तो कल जल्दी आना, अपन बात चैट करेंगे। वो तो उधर ही थे आज़ाद मैदान पे, उधर ज़ोरास्ट्रियन क्लब था। तो मेरे को अच्छा लगा। तो बोले तो अंपायरिंग करेगा क्या? तो मैं बोला करूँगा, 10-12 रुपया मिलेंगे आपको। तो मैं बोला बहुत अच्छा है, पैसा भी मिलेगा। तो मैंने चालू किया और रोज शाम को उसके साथ बैठता था मैं 3 बजे जाके। तो क्रिकेट बाजू में गया, उसका भी फॉलो करने लगा मैं और मजा आने लगा। फिर उन्होंने बोला अभी आप एग्जाम रहेगा MCA का, वो अटेंड करो। तो बोला क्या फी रहेगी? तो बोले 1 रुपया। 1 रुपया फी? तो रजिस्ट्रेशन फी है। तो बोला बहुत अच्छा है। तो अपियर हुआ, एग्जाम के लिए मैं कोशिश करने लगा, अपियर हुआ। इसके साथ बैठता था रोज शाम को मामसा साहब के पास। बाद में क्लास को जाएगा तो रोज एक कप चाय देते थे। 1 रुपया में क्या क्या मिलने वाला था वो सब सोच रहा था मैं। और फिर मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गया। 10 पैसे में भी क्या क्या मिलता था, तो एक करेक्ट। रुपया तो बहुत बड़ी हाँ, बात थी, इसके लिए मैंने पूछा। बराबर बराबर है आपका। अगर 1 रुपया, फिर डैडी से जरा बोला मैं ऐसा ऐसा 1 रुपया दे दो, रजिस्ट्रेशन फी है। तो मैं रजिस्टर्ड हुआ अंपायरिंग के लिए। और बाद में फिर बहुत मेहनत किया थोड़ा सा एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो अब जब शाम को 3 बजे जाके बैठते थे तो क्या क्या देखने मिलता था, यानी क्या क्या सीख रहे थे आप? वो ग्राउंड पे उधर मामसा साहब रहते थे, वो क्रिकेट के बहुत जन आते थे उधर पूरा आजाद मैदान से बताने के लिए, आज ये हो गया वो हो गया, इंसिडेंट ऐसा हो गया। कोई तभी का एक किस्सा आपको याद है?
ज्यादा किस्से बहुत होते थे, ऐसा हो रहा है, मामसा साहब रूलिंग देते थे, सब ज्यादा कर ऐसा हो गया, ये मैच में ऐसा हो गया, कुछ समझता तो नहीं था, क्यों लॉ का कुछ मालूम नहीं था। तो मामसा साहब ने बोला आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब आखिर क्लासेस चालू होने वाले 2-3 महीने में, आप आ जाओ। तो ठीक है, इसके लिए मैं रजिस्टर्ड हुआ, और बोला 1978 की बात है, चलो रजिस्टर्ड, 1 रुपया में जाके क्लासेस तो अटेंड करेंगे। तो आई थिंक वो जब क्लासेस शुरू हुई तभी वो एक जर्नी शुरू हुई, या उसके बाद भी आपको कुछ वक्त लगा? नहीं, उसके बाद 1978 में मैंने अपियर किया एग्जाम में, मैं सक्सेसफुल नहीं था, मेरे को 76 मार्क्स से मिले, ओके। फेल हुआ, और ये लोग का क्वालिफिकेशन 80 का था। ओके। तो मैं बोला अरे कुछ गड़बड़ है, और एमसीए वो बोला वी वांट टू पास, आपको पास कर सकते हैं, मगर आपके साथ और 2 जन भी है 76 पे, तो आप नेक्स्ट ईयर अपियर करो। तो मैं नेक्स्ट ईयर बोला नहीं, ठीक है, हाँ करके, और फिर मैं प्रैक्टिस करने लगा, बहुत लोकल मैचेस करने लगा। एमसीए पहले अंपायर जैसे जो फेल होंगे होते थे उनको मैचेस देते थे, स्कूल क्रिकेट ये वो, सो मैं थोड़ा ग्राइंड हो गया। फिर 1980 में मैंने बोला अभी फुल फ्लैश अपन अपियर होएंगे, और फिर मैंने अपियर इन 1980। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे काफी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, और शायद बहुत ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं कि जिनको अंपायर बनना है। तो ये जॉब, इसको हम जॉब ही कह सकते हैं, बिकॉज एक बहुत जिम्मेदारी होती है उसमें, काफी कुछ सीखना पड़ता है, और वो जितने आप लॉज सीखते हो, वो पूरे लॉज प्रैक्टिकल में जब आप एक डिसीजन देते हो, वो एक प्रेशर होता है, या आपने हमेशा उस जॉब को एंजॉय किया? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आजकल के जनरेशन, या ओवरऑल जिसको भी कुछ बनना है, तो उसके बारे में जितना डिटेल हम उनको आज बता सके इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि ये जॉब कितना टीडियस है, या कितना आपको उसमें सीखना होगा, फिर उसको वो डिसीजंस कैसे अप्लाई करने होंगे, तो उन उन व्यूअर्स के लिए, उन लोगों के लिए मैं यही पूछना चाहूंगा कि हाउ इज द नेचर ऑफ द जॉब? बेस्ट जॉब है, नो वेयर यू विल गेट, दिस इज द बेस्ट सीट। कितना भी आपके पास पैसा रहेगा, आप इतना नजीक से क्रिकेट देख नहीं सकेंगे। स्टेडियम का बेस्ट सीट इज द अंपायर सीट। बस प्रिपेयर करो, यू गेट टू सी द बेस्ट ऑफ क्रिकेटर्स, यू ऑल्सो गेट टू सी द बेस्ट ऑफ प्ले फ्रॉम वेरी क्लोज डिस्टेंस, किसको भी नहीं मिलता है इतना नजीक से इतना अच्छा क्रिकेट देखने के लिए। सो थोड़ा मेहनत है उसके अंदर, मगर डू इट, डोंट थिंक आजकल तो इट्स लाइक गुड मनी ऑल्सो इज देयर, और अच्छा फैसिलिटीज है बीसीसीआई तरफ से, बट व्हेन यू स्टार्टेड एज अ पैशन एंड देन कन्वर्ट दैट इनटू अ प्रोफेशनल। ने आपको पहले क्यों बुलाया? क्योंकि हर बताइए। क्रिकेट मैच के पहले अंपायर पहले ओह अंदर वेरी जाते नाइस। हैं और फिर प्लेयर्स जाते हैं, यस। तो हमने सोचा एक अंपायर एक्सक्लूसिव कर ले। वेरी नाइस। जब आप कहते हो कि दिस इज द बेस्ट जॉब, एंड आई अग्री टू समथिंग दैट यू सेड, दैट टू बेस्ट सीट्स इन अ क्रिकेट मैच इज द अंपायर्स सीट, बट वो हॉट सीट होती है या स्टार्टिंग को लगता है हॉट, मगर उधर जाने के बाद में इट्स टाइम कूल, और अभी का तो इतना सिस्टम अच्छा है क्या, इट्स नॉट एट मच डिफिकल्ट बिकॉज सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल इज कम इन। सो ये जस्ट इनफैक्ट अभी तो बॉल गिनने की भी जरूरत नहीं, आपको जल्दी उधर खड़ा रहना है with backdrop, lot of matches experience. It's become easy now. तो शायद ये मैं कह सकता हूँ, ये आपके लिए ये पैशन था अंपायरिंग करना, या वो एक इंसिडेंस आपने बताया कि जब आप पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए एक्चुअली गए थे, लेकिन आपने फिर अहमद सर को फॉलो किया, उनसे काफी सीखने मिला, तो वो एक पैशन बन गया था, और उस पैशन की वजह से शायद आपने एक बहुत अच्छा पेइंग जॉब, होटल ओबेरॉय में आप स्टूवर्ड थे, Yes. और शायद ये पैशन की वजह से वो जॉब छोड़ दिया। या घर में हम लोग उस जमाने में वेटर बोलते थे, इट्स जरा अच्छा क्वालिफाइड वर्ड लगता है स्टीवर्ड। आई वाज अ वेटर इन स्टीवर्ड इन होटल ओबरॉयज। तो वो लोग का स्क्रीनिंग होता था एवरी 3 months 6 months। दे यूज्ड टू आस्क मी, आई यूज्ड टू बंक, एक्चुअली आई यूज्ड टू गो एंड टेल दे। तो मैं उस टाइम विजय मर्चेंट के पास आई वाज वेरी क्लोज टू हिम, सो आई टोल्ड हिम ऐसा ऐसा है, संडेज को मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। उसने उनका गाड़ी में बिठा के नेक्स्ट डे सीसीआई में लाया। दे वांटेड टू स्टार्ट अ बेकरी देयर, एंड सो वो बेकरी चालू करने का था, सो आई वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग बेकरी एट सीसीआई।
और वाओ। बाकी का सब सीसीआई में फिर दे गिव मी द फैसिलिटीज ऑफ संडे, देन मैचेस को जाने के लिए स्पेशल लीव देते थे वो. एंड ओनली डिफरेंस वाज द सैलरी विच दे ऑफर्ड मी वाज ₹850 पर मंथ. ओबरॉयज में हम लोग को टिप्स मिलता था विच वाज एवरी 10 days 850. So वाओ। I left that thing, sacrificed that thing. Today I would have at least maybe Pache flat in Cup Parade or some good area in Bombay. But I'm lucky that today my name is there in Google, which I would have not had. बट यही मैंने कहा ना सर कि आज अगर हम आपके पास देखते हैं तो शायद आपने जैसे आपने खुद ने कहा कि पाँच छह घर तो नहीं है या बड़ा महल नहीं है, लेकिन एक चीज है वो रिस्पेक्ट, वो जब जब वो Exactly. क्रिकेट ग्राउंड पे वो एक रिस्पेक्ट या मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप में मैं एक मेरे पिताजी देखता हूँ, क्योंकि जब भी हम क्रिकेट ग्राउंड में मिले हैं या फोन पे बात किया है, आपने हमेशा मुझे एक लेसन वहां पे कुछ ना कुछ तो दिया है, फिर वो क्रिकेट से रिलेटेड होने दो या एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ, आपने हमेशा वो एक कहते हैं ना, एक सर पर एक हाथ रखा है कि तू तू करते रहे और तू सक्सेस पाएगा। ये हमेशा मुझे याद है, हमारी कॉन्वर्सेशन होती है तो आप हमेशा मुझे वो ब्लेसिंग्स देते हो। मगर जब आप आज क्रिकेट ग्राउंड पे जाते हो एज अ मैच ऑब्जर्वर या आज एज अ पैनल, यू नो क्या बदला है क्रिकेट में? बहुत कुछ बदला है. अभी पैसा बहुत आयल है और प्लेयर्स का जो खेलने का तरीका बदल गया है. एंड गुड, इट इज चेंज फॉर अ गुड. पैसा किसको नहीं मांगता है पैसा आजकल के जमाने में. और सब महंगा भी हो है. बैट बीट का हम लोग के जमाने में एज आई टोल्ड यू 50, आज 50,000 मिनिमम बैट का कीमत है. एंड अंपायरिंग भी है. वी स्टार्टेड विद सो लेस फी. टुडे वी जॉब विल गिव यू 35,000 per day. यस। BCCI job, you're doing a match, Mizoram versus Sikkim. Some girls are playing, You do your duty, you get 35,000, 30,000 per day with the best of facilities of BCCI. 5 star होटल में रहते हो आप, फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, और क्या चाहिए आपको. वेल, आपसे काफी सारी चीजें जाननी है इस पॉडकास्ट में। जितना मैं आपसे एक कहते हैं ना कि एक जब एक ज्ञान का महासागर होता है तो आप उस महासागर से जितना आप ले सकते हो, जितना आप लूट सकते हो, नहीं, तो वो लूटना है मुझे आज। मैं ओपनली बोलता हूँ। नहीं. It's nice of you to acknowledge, that you're gaining always with a meeting with me. कुछ ना कुछ gain होता है. सर, इतना कुछ सिखाने के लिए आपके पास है कुछ, बहुत कुछ सीखना सिखाने के लिए, और इसके लिए हम सीखने के लिए आ जाते हैं। तो शायद ये पॉडकास्ट भी एक तरीके से कुछ ना कुछ सीखना है, इसके लिए भी शायद ये नहीं, पॉडकास्ट आप हो भी रहा है। सीख लेंगे. It will be, others also will be benefited because of your questions. एब्सोल्युटली So सर। Yeah, it will be our pleasure. Marcus sir, you just told by my friend Dipesh that you flunked in 1980 in the umpiring exams, and then afterwards you wrote again, and I get to know that you actually got 100% marks in all the aspects of the exams. How did you do that? Can you just elaborate? Yeah, it's easy actually. If the way I worked, if anybody else works the same way, you all can also be successful. As I told you, in 1980, I appeared for the exam and there were classes. The classes used to begin at 6 o'clock. I used to go to Mr. Mamsa at 3 o'clock. So, what he used to teach in the classes, he used to take classes. So, what he used to teach in the classes, I used to get that knowledge 3 hours before. So, I was prepared in the class, it was a revision. Then, after class, 6 to 8, the classes used to get over. And after 8 o'clock, Mamsa was a lover of tea. So, in the stadium hotel, we used to sit down there and then have a cup of tea. And that cup of tea is to be for 2 hours. So again, what is to teach in the classes, I used to again get a revision again after 2 hours. So I used to prepare in such a way that I used to keep on writing notes. Just the points. He used to tell some incidents. Then I used to go home and used to stretch those notes, into 10 to 20, 30 lines. And then again I used to study. Then before exams, I used to, be with him in his house. He was a bachelor. I used to be with him, again study with him. So it was very easy for me to, in fact, I used to have advantage of 3 times learning the same thing, what is to teach in the class.
I was prepared then for the So, exams. indirectly, Mamsa was a messiah for you at that time. Very, very lucky I was. And Marcus, tell us something about Mamsa, sir. Mamsa was he was taking classes for many years. I think all the umpires during those years came through Mamsa only. All the test umpires, including Mr. Gotaskar, all the umpires from Bombay, because he was, all the time at 1K easily available. Except Ruben, who was from Pune, everyone umpire had to go through Mamsa's classes. Can I ask you a personal question? See, you have done some lot of matches. In any match, have you had any bad taste of any made decision that you made, or any incident in of any of such match which you still remember and you would like to share it with us? Many. I would be lying, or any umpire I think who has not made mistake would be lying to you. Umpires do make mistake. The better umpire is the umpire who makes less mistakes. And same mistake, if he can improve in the other next match, he would be a good umpire, not to commit the same mistake. But mistakes do happen, and it will happen in future also. Let any technology come in, even Right. umpiring will be a thankless job, and mistakes will occur. The last I did was a game where Punjab and Delhi were playing, Okay. and I prayed. Normally we pray. I prayed little extra that this match let few mistakes happen from my end, because there were three players each side making a comeback to the Indian team. There was Harbhajan Singh, Yuvraj, and one more from Punjab. Here Gautam Gambhir was there, Sehwag was there, and Nehra. So I said, let me do a good job today. And it was a Delhi ground. People were there because of the stars playing. And I think I did a fairly good job. Okay. Any incident in that match? Sehwag asked me after retirement, what are you going to do? I said, I'm going to start a cricket, school and all that, so that I train. So he's saying, tomorrow morning, the match was after 2 days. He said, tomorrow morning, go to a judger where he has an academy of his own and see how it is, so that it will help you. It was nice of him. He gave me a car early morning. The car was there. I went to his place. Very nice sports complex and vast land he has. Everything was there. I had a good lunch. His wife was there. I came there and we forgot about it. Next day the match began, and after scoring some 2-3 boundaries, his famous square cuts, I gave him out, not to a snake but to a cut, caught by wicket keeper. He came running towards me with a bat in hand as if to hit me and saying, sir, कल जब खाने में मिर्ची ज्यादा थी या नमक कम था? I said, Sehwag bhai, you're showing this. I have to go to the hotel. This crowd will not allow me to go. Then he, embarrassed me and all that. It was nice of him. Yeah, it was like a banter. He coming and embarrassing you. Actually, first embarrassing you and then embracing Like you. he did it in Yeah, joke, but he did it yeah, in joke. yeah. That's very good. Sir, cricket is a team game, okay, and in cricket you see a lot of partnerships. Which partnership you like the most or you love the most in umpires? Like when you used to go for umpiring, so either you will be going as a main umpire and there will be always a leg umpire. तो आपके जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ आपको अच्छी लगती थी कि एक पार्टनर में जब अंपायरिंग कर रहे हो तो वो दूसरा पार्टनर कौन ज्यादा आपको मतलब फेवरेट था आपका, या उसके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग आपकी जमती थी? We for matches we had always different partners. और उस जमाने में मालूम ही नहीं पड़ता था कि we had from different state, and then we used to meet him for the first time. फिर उसके साथ थोड़ा मिलना, एक रूम में रहना, ऐसा ही चलता था. क्यों बहुत मुश्किल होता था कि सेम पार्टनर सेम मैच को मिलते थे. फिर तो भी भी कोई ऐसा नाम आपके दिमाग जहन में आता हो? तो भी एक मिलिंद पाठक नाम का अंपायर था जो हिंदुजा हॉस्पिटल में एकेडी डिपार्टमेंट में काम करता है. उसके साथ बहुत मैचेस किया हमने. क्यों आई डोंट नो, बोर्ड बिकॉज हम लोग का हाइट ना सेम था. और एक तो पुणे में हम लोग मैच कर रहे थे. महाराष्ट्र का मैच था पुणे स्टेडियम में, और पब्लिक बहुत था. और उस जमाने में हम लोग कोट पहनते थे, तो हम लोग का यहाँ तक कोट था, घुटने के नीचे. तो दोनों जन ऐसे मस्त उतर गए मैदान पे, शॉर्ट हाइट वाले. वहां से एक पब्लिक ने जोर से चिल्लाया,
अरे आलेले आले 2 जोकर आले. You know that quote and all, everybody started laughing. We could not laugh. क्यों फिर पुणे का पब्लिक फिर पूरा दिन फिर हम लोग के पीछे ही पड़ते थे. Like we had many partners. Even I had my brother as my partners for the initial starting का matches को both. It was He helpful is, for I him. think, the youngest umpire that you have trained. Your younger brother. Yeah, he's the youngest umpire in maybe India. Can you tell me something about that? He was with these boys, Sachin and Kamli in Shardashram, and these boys were little street smart. बहुत क्लेवर थे सचिन और विनोद, और कुछ भी करते थे मैच के दौरान. तो शाम को आके पूछता था, इन्होंने ऐसा बॉल उठाने बोला, किसको आउट लिया, किसी ने ऐसा लिया, ये हुआ वो हुआ. तो ही के थोड़ा ये लोग जानकार थे लॉस के दोनों जन, सचिन और विनोद. तो उसको मालूम पड़ा कि बहुत टाइम वो जाता था शाम को, और ऐसा कॉमन कंप्लेंट रहता था. मैं पूरा दिन था, कोई सचिन नाम का 300 किया, उसके बाद में दूसरा आया 200 किया, मैं पैड बांधा था पूरा दिन, फिर वापस रोज का वही स्टोरीज. तो मैंने उसको बोला बस कर अभी, कोई तो भी ये लोग यूनिक लड़के लोग हैं, तू इनको तू तेरे अंडर खिला, तो मैं कैसा खिला सकता है इनको, ये तो मेरे को 12 में चांस नहीं मिलता बैटिंग करने को, तो तू अंपायर बन, तो हो सकता है. तो उसने वो ट्रेन किया और दे डिड प्ले अंडर हिम एज एन अंपायर. ये पॉडकास्ट में कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि मैंने आपको आपके पार्टनरशिप के बारे में पूछा, लेकिन आपने सबसे बेस्ट पार्टनरशिप जो एक एग्जाम्पल है पूरे विश्व में, द होल वर्ल्ड नोज द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप ऑफ सचिन तेंदुलकर सर एंड विनोद सर. नाउ दैट अब टॉपिक आपने शुरू कर ही दिया है तो उसका हम विस्तार में बात करेंगे. तो सचिन और विनोद सर के बारे में आप क्या कहेंगे? सचिन सर, वो शारदाश्रम की उनकी वो पार्टनरशिप, और क्या आप थे वहां पे और क्या था वो किस्सा? वो 664 रन्स की पार्टनरशिप हुई थी. मेरा रिकी, मेरा जो भाई था, उसको मैंने छोड़ा एज यूजुअल सुबह आज़ाद मैदान पे, और मैं जॉब पे गया सीसीआई में अबाउट 5 मिनट्स अवे. ये लोग का मैच चालू हुआ, 2 विकेट गए, मैं बोला चलो अभी ड्यूटी पे जाएंगे अपन, बाद में आएंगे दोपहर को. तो देखा तो ये लोग का अभी तक बैटिंग कर रहे हैं ये लोग दोनों जन, और वो नेक्स्ट बैट्समैन अमोल मुजमदार था ये लोग, और अमोल नॉक रह रहा है. नेक्स्ट बैट्समैन जो रहता है वो जमाने में प्रैक्टिस करता था थोड़ा टू गेट सेट फॉर दी. दोपहर को आया टी टाइम में, दूर से देखा, अरे अमोल अभी तक नॉक ले रहा है, मतलब ये लोग दोनों आज भी तक खेल रहे हैं. ये चला शाम तक चला, चालू हो गया. नेक्स्ट डे देखा ये लोग नॉट आउट थे. नेक्स्ट डे देखा ये लोग का बैटिंग आ रहा है, ये लोग बैटिंग ही कर रहे हैं. देखो दोपहर को आया तो देखा अमोल ने बंद किया. अमोल को लगा नॉकिंग क्यों बंद किया? अरे मैं इनका बैटिंग देख रहा हूँ, बस हो गया, मैंने नॉकिंग किया, अब ये लोग का मजा आ रहा है बैटिंग देखने. तो ऐसा कर करके ये लोग बैटिंग कर रहा था. लोग दोनों 350 पे रन पे थे. तो एक उनका कोच था चौहान नाम का, ससानियन का, वो बाउंड्री लाइन से घूम रहा था. अरे बस करा डिक्लेरेशन कर रहे थे. ये लोग वो इस तरफ था, ये लोग इस तरफ देख रहे थे. ये लोग को अवॉइड कर रहे थे. ये लोग को जस्ट स्कोर करने का था, और वो जगह में अगर दूसरा कोई रहता था ना तो ज्यादा रन होते थे, 1000 रन होते थे. क्यों? अंपायर भी थक गए थे सिग्नल करके. तो अंपायर सोच रहे थे ये लोग बॉल दूर जान दो, एकदम दूर जाता था, तभी ये लोग का 4 रन होते थे, तभी अंपायर सिग्नल करता था, ताकि एटलीस्ट ये थक के ये लोग डिक्लेरेशन करेंगे. मगर नहीं, ये लोग तो गाना गा रहे थे, हर बाउंड्री के बाद दोनों गाना गा के मजा कर रहे थे. और सामने की टीम में कैप्टन सैराज भौतुले था, सेंट जेवियर्स टीम थी. ऐसा करके बाद में सर ये लोग दोपहर को गया, वो खींच के लेके गया उनको. चलो उस टाइम पब्लिक कॉल था, तो उधर जाके खाऊ गली में था. वो बोले सर अब भी आचरकर को सर को फोन किया, अभी क्या अभी डिक्लेअर करो? नहीं सर 10-12 रन है मेरे. नहीं, नथिंग डूइंग, अभी तक चोपता तुम्ही त्यांना, ताबडतोब तो डिक्लेअर करा. तो वो जो वॉक है ना, नॉर्मल वॉक आजाद मैदान से वो टेलीफोन बूथ तक ना, हार्डली आपको 1 मिनट है. मगर उस दिन ये लोग ऐसा चल रहे थे, ऐसा नीचे देख के 2-3 मिनट लगा है ना, तो बड़ा एकदम ये हो गया. सर ने बड़ा डिक्लेरेशन करने को बोला, एंड दे डिक्लेयर्ड. तो वो डिक्लेरेशन नहीं होता तो ये खेलते ही जाते यार, खेलते ही जाते. और क्या मालूम 400 पर 500 भी रन बनाते थे, एकदम ट्रिमेंडस फॉर्म में थे. स्कोरशीट तो आपको मिली होगी? स्कोरशीट मिली थी हमको. हम लोग को माने ये रन होने के बाद में किसी ने, हम लोग को लगा कि रिकॉर्ड हुआ रहेगा, तो मैं भाग गया
कांगा लाइब्रेरी में, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स लाइब्रेरी इन एशिया, वानखेड़े स्टेडियम पे ग्राउंड फ्लोर पे थी उस जमाने में। तो सब बुक्स देखा, मिला ही नहीं, 2-3 दिन 8 दिन हो गया, नहीं मिल रहा है। कोई बोले आनंद जी दोसा को पूछो, पूछो, ही वाज द डॉन उस टाइम ऑफ स्टैटिस्टिशियन। वो बोले स्कूल क्रिकेट का रिकॉर्ड सब मैंने रखता है, अब टेस्ट क्रिकेट का बोलो, फर्स्ट क्लास का बोलो। तो कोई सुधीर वैद्य थे, उनको बोला, वो मिला क्या ऐसा ऐसा रिकॉर्ड हुए क्या, 664 स्कूल क्रिकेट में हुआ है? नहीं। फिर कोई बोला ब्रिटिश काउंसिल में जाओ, वो लाइब्रेरी में रहेगा। क्यों ऐसा? तो उधर गया हम लोग, तो उधर भी नहीं मिला। फिर किसी ने बोला लास्ट को ना, एक रिलायंस में आप जाओ, उधर मोहनदास मेनन नाम का आदमी है, वो सब शायद उनके पास रहेगा। और देखो उधर हम लोग गए रिलायंस में, उस टाइम वो इतना फेमस नहीं था, अभी तो वर्ल्ड का नंबर 1 है स्टैटिस्टिशियन मोहनदास साहब। तो देखा तो लाइन थी, और वो पर्सनल ऑफिसर था। हम लोग ने नोट भेजा टू सी, उधर रीजन था फॉर व्हाट, तो हम लोग देखा फॉर क्रिकेट। बाहर आया, हम लोग को लगा, सब देखने लगा, सब लाइन 40-50 के पहले हम लोग को गया। तो उसने देखा, उसका कैबिन में पूरा बैकड्रॉप क्रिकेट का था, 10 मिनट में बता दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो बोला स्कोर शीट लेके आओ। तो हम लोग गए स्कूल क्रिकेट में, स्कोर शीट देखा, शारदाश्रम का पास था, उनके पास था। तो स्कोर शीट ऐसा था क्या, वो 6 के 8 बच्चे लोग ने ये किया था स्कोरिंग, ये तू आता है, तू बैठता है, सब ऊपर, तो जगह नहीं था, ऊपर नीचे सब पूरा भर दिया था। अरे तो बोले, अभी टैली कैसा करेंगे? तो बाद में टैली करने के लिए, और फिर हम लोग को वो विजडन को भेजने का था, क्या प्रूव करने के लिए कि इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो विजडन को भेजने के पहले हम लोग ने 2 रन सचिन के कम किए। तो कभी अभी भी मिलता है क्या, रे तेरे को मेरे ही 2 रन मिले क्या कम करने, 22 से 9 बॉल से, उसमें से नहीं किया क्या? तो अभी भी उसको तो याद वो रहा। इतने लेवल पे कैलकुलेशन है कि आज तक याद है, वो 2 रन कम थे। हाँ, और वो इतना ग्रीडी था रन्स के लिए कि 2 रन भी उनको इम्पोर्टेंट थे। 350 में 2 रन पे बोले चलो करेंगे इसके यार। नहीं, इतने साल बाद आज भी वो आपको अगर बोलते हैं, तो मतलब हाँ, कितना कितना कुछ दिमाग में है। आज पूरी दुनिया उनको अलग अलग तरीके से नहीं मिलना चाहती है, अप्रोच नहीं, करना उसका चाहती है। मेमोरी एकदम अलग है। बट वो पार्टनरशिप के बाद ये एस्टैब्लिश हो गया था कि दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, एंड वहां से क्या उनका इंडिया खेलने का सफर शुरू हुआ? क्यों, वो पार्टनरशिप उसके बाद बहुत जन किया है स्कोर, आप देखेंगे ना स्कूल क्रिकेट में 400 मारता है, 500 मारता है, बट दे डोंट कैपिटलाइज ये लोग का। उसके बाद में आप स्कोर देखेंगे ना, आफ्टर दिस पेपर पब्लिक को मालूम पड़ा कौन है ये दोनों ये बच्चों पूरा लोग। पेपर में आ गया। पेपर में आ गया, और उस टाइम आफ्टरनून नाम का पेपर था, एक नया पेपर था, इवनिंग पेपर था। तो स्कूल क्रिकेट को ऐसा कवर करता था कि ना, बड़ा टेस्ट मैच है, कि उनका एक शरद कोटनिस नाम के साहब थे, वो उधर बैंड्रा में ही रहते थे। तो he also had soft corner for Sachin, so he used to cover full page. तो people started following them, और they did not keep quiet। आप देखेंगे ना, फिर बाद में वो 200 300 200 300 ऐसा 6-7 मार मारने लगा। हर टाइम हर इनिंग में उतरेंगे, 200 से 300 100 से सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। तो ऐसा फिर वो बॉम्बे क्रिकेट में मालूम पड़ा कि कौन है अभी, अरे कौन है स्कूल क्रिकेट, और जस्ट ए डिवीजन क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। स्कूल क्रिकेट से ये लोग को बॉम्बे ने चांस दिया, अरे सचिन को पहला लिया, तुम खेलो भाई, तुम बहुत है। प्लेयर्स लोग बड़े बड़े सेलेक्टर्स लाके देखने लगे स्कूल क्रिकेट क्या है ना, स्कूल क्रिकेट को भी पब्लिसिटी मिला, अरे क्या ऐसा ऐसा है, कौन है कैरी शील्ड क्या है। एंड देन ही वाज सेलेक्टेड एज ए यंगस्टर टू प्ले फॉर बॉम्बे। उधर भी बॉम्बे में उन्होंने फिर ऑन डेब्यू सेंचुरी मारा। विनोद थोड़ा दिन के बाद आ गया। दादा लोग थे लोग रन्स में। बट दोनों रन स्कोरिंग जब करते थे, या उनकी एक पार्टनरशिप जब चलती थी, तो ऐसी क्या खासियत थी उस पार्टनरशिप में? क्या वो दोस्ती कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप में दिखती थी, या उनका ट्यूनिंग पहले से अच्छा था, या बॉन्डिंग पहले से अच्छा था? एग्जैक्टली क्या था कि इतना अच्छा, एज अ पार्टनर्स काफी खेले वो, तो एज अ पार्टनर्स जब आप खेलते हो, तो या तो बचपन से ज्यादा टाइम आपने वक्त बिताया है, या क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, या एक ऐसी एक सिमिलैरिटी रहती है कि शायद यू नो और ऐसा मेरे लाइफ में काफी बार हुआ है कि एक एक वाइब आती है कि मैं इससे ज्यादा कनेक्टेड रहूं, या इससे मैं थोड़ा कम कनेक्टेड रहूं। तो सचिन सर और विनोद की ये जो दोस्ती थी, या जो एक क्रिकेटिंग पार्टनरशिप थी, वो कहाँ से डेवलप वो हुई? लोग का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था, कॉम्बिनेशन ऐसा था ना वो लोग का स्कूल लाइफ में, आप सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब सब दोनों एक साथ ही मस्ती भी इतना करते थे, बट स्कूल में बहुत मस्ती करते थे दोनों ही जन।
शाम को कोई मस्ती तो हर हर एक हर ये बच्चा हाँ करता है, तब तब वो जो बचपन जो बिना मस्ती के नहीं जिया तो क्या जिया। करेक्ट। और फिर खाने को कुछ रहेगा तो सब इसमें ये लोग इतना स्मार्ट थे ना, ये लोग कुछ भी करते थे, अगर पढ़ाई में भी ध्यान देते थे ना तो भी ये लोग टॉप होते थे। वो अलग बात है पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया ये बट लोग। शायद उनका ये क्रिकेट का सफर ही उनके जिंदगी में अगर लिखा था तो करेक्ट। शायद वो राइट स्टडीज में थे, राइट ग्राउंड्स में थे, मैदान में थे। तो वो आई थिंक ये तो हम एक स्टार्टिंग का वो जो किस्सा है वो बात कर रहे हैं कि 664 रन्स की पार्टनरशिप, बट काफी कुछ इंडिया के लिए इन्होंने किया है और इंडियन क्रिकेट के लिए स्पेशली किया है, जो आई थिंक ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि सुनहरे अक्षरों में ही लिख सकते हैं। तो 664 का और एक बताना चाहता हूँ आपको। जब ने हम लोग ने विजडन को भेज दिया वो 2 रन करने के बाद में, वो लोग ने डिक्लेयर किया क्या भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो विजडन बुक में आया था। विजडन इज कॉल्ड लाइक अ बाइबल ऑफ क्रिकेट। तो ये लोग को मालूम पड़ा है देखने का। तो मैं एक दिन जस्ट वो मरीन स्पोर्ट्स शॉप है बॉम्बे में, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट शॉप इन स्पोर्ट्स, थियो ब्रिगांजा उनके मालक है। तो उनको बताया मैंने, बोला एक दिन के लिए दे दो। नहीं नहीं बोले बच्चे लोग को मेरे दुकान पे ला, और शारदा आश्रम 10 मिनट पे था उसका दुकान से। तो दोनों जन आके देखा, अरे अपना नाम आया देखो, अपना नाम आया देखो। तो ऐसा फिर बच्चों लोग को लेके आने लगा वो सचिन और अरे यार, ये बुक में ना हमारा नाम है दोनों का। स्कूल के बच्चे लोग आने लगे। तो वो जो मालक था थियो ब्रिगांजा, वो बोलने लगा सारा बुक खराब हो रहा है, उसको तो बेचने का था वो बुक। उसने क्या किया, वो कबाड़ में डाल दिया, उनके बाहर ऐसा शोकेस था। तो फिर तो भी आते थे वो लोग शाम को, बच्चे लोग लगे ये बुक के अंदर ना अपना नाम है हम लोग दोनों का, हमेशा बताते थे। तो फिर वो तो थियो ब्रिगांजा बोलने लगा सारा ये रोज खाली आते लेते नहीं है बुक, खाली देखते हैं। तो उसने वो बुक वहां से भी हटा दिया। तो ये लोग को थोड़ा गुस्सा आया। और विनोद तो आपको मालूम नहीं कैसा लेग पुलर था। तो वो लोग क्या करते थे मालूम, वहां जाते थे और तो थोड़ा दूर से उसका आवाज आवाज देते थे, थियो। ये बाहर आता थे, ये लोग भग जाते थे। वो गुस्से में क्यों हमारे बुक का को हटाया। वो रात दोपहर को हमें जाते थे, थियो ये कौन चिल्लाया मेरे को, ये जब तक ये लोग स्टेशन के ऊपर। थियो ब्रिगेंजा सर खुद एक ही इज अ वेरी गुड यू नो उन पर्सन बाय हार्ट, थियो सर। बिकॉज थियो सर से मैं आई थिंक एमआईजी में मिला था, और तभी मैं एक इवेंट कर रहा था एमआईजी के लिए, और तभी काफी अच्छी बात हुई थी, तभी के बुक्स के कलेक्शन के बारे में। इनफैक्ट एक एक वेब सेमिनार हम कर रहे थे, तभी थियो सर भी थे उस सेमिनार में। तो वो एक एक थियो सर एक अलग डिक्शनरी है क्रिकेट की, और उनसे भी काफी सारी चीजें प्रोबेबली फ्यूचर में अगर जानने मिली तो मैं कहूंगा। लेकिन अब आपकी ये दोस्ती थियो सर के साथ कैसे? बहुत अच्छा है, बिकॉज उन्होंने जो स्कोरिंग के लिए जो चालू किया था ना, एसोसिएशन वगैरह को हेल्प किया स्टार्टिंग को, वो स्कोरिंग का सिस्टम बनाने का था उनको। फिर बाद में ना बीसीसीआई स्टार्टेड फॉलोइंग द ओन। मगर फर्स्ट पर्सन स्कोरिंग बिरिंग का जो बताने को दुनिया को किया है ना, स्कोरिंग डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था, आई थिंक थियो सर वाज, कैन आई कॉल दैट वन ऑफ द पर्सन, और ही वाज द ओनली पर्सन, वन ऑफ द one पर्सन। of the persons to start off this documentation in a proper systematic manner. और इतने बुक्स किधर भी नहीं मिलते थे उनके पास। कौन सा भी बुक ले लो आप स्पोर्ट्स के, क्रिकेट हो छोड़ो, उनके पास तो अभी कल्चर गया है पढ़ने का पीपल। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, थियो ब्रिगेंजा सर खुद में एक डिक्शनरी है। तो बुक्स का कलेक्शन हो या उनका क्रिकेट नॉलेज हो। जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड 75th बर्थडे। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, स्पेशली थियो सर। और ये क्लिप मैं आपको भेजूंगा, आप भी देखना। बोल्ड मीट्स बोल्ड, और कभी आपके साथ भी अगर इस पॉडकास्ट में बैठने का आनंद मिला तो प्लीज थिंक अबाउट इट। ये ओपन इनविटेशन भी दे रहा हूँ। देखो, ये फायदे होते हैं पॉडकास्ट करने के कि आप जो दिल में है ना वो आप बोल दो, आप एक्सप्रेस कर दो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये दिल खोल के बोल रहे हैं, काफी सारे किस्से सचिन सर के, विनोद सर के, एंड नॉट जस्ट सचिन सर और विनोद सर, बट मुझे अभी भी पता है अगर ये पॉडकास्ट अगर और 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे भी चला तो कम से कम आज 250-300 स्टोरीज तो आसानी से आ जाएंगे हमारे पास। तो आप हर स्टोरी को हम अनफोल्ड करेंगे आज, उनको आराम से, मतलब बोल दिया था मैंने सर आज कुछ नहीं रखना, आज कुछ नहीं रखना, क्योंकि इतनी सारी चीजें जानने के लिए इस 42 इयर्स में इतने दिन। देर इज अ सेइंग इन मराठी की मार्कस कुटो सरांनी खूप उन्हाळे पण बघितलेत
आणि खूप पावसाळे पण बघितलेत. हे फक्त वरती जे केस पिकलेत ना, ते 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 पूर्ण अनुभव आहे. तो पूर्ण एक एक म्हणतात ना, ते एक पूर्ण जर सांगायचं गेलं तर कुठच्याही अशा फंक्शनमध्ये एक जत्रा जी भरते ना, त्या जत्रेचं इम्पॉर्टन्स काय असतं, हे कुठे ना कुठे ह्यांना बघून वाटतं. कारण क्रिकेटची जी जत्रा ह्यांनी जगली, एक अंपायर म्हणून, त्यानंतर एक प्रशिक्षक म्हणून, किंवा एक 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 जो हात असतो ना, एक मायेचा हात प्रत्येक क्रिकेटर्सवर, तो आय थिंक गुरुदेव स्वतः इकडे आलेले आहेत. आणि बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को करने में आपके साथ, क्योंकि ये किस्से और किसी के साथ बैठकर बात करने नहीं मिलेंगे. Marcus sir, can we know your first Ranji match? When you actually, which place and when was that? I was lucky, my first debut match was a Ranji match. नहीं तो क्या रहता है ना, under 14, under 16 and all that they tell you to do. I got married and I was on a honeymoon trip to Mysore. So I received a call from BCCI. Arey, congratulations, you got married, but we didn't give you a gift. So, नहीं चलता है. A lot of people had come for the wedding. So नहीं, this is a gift. Please go to Goa and do a Ranji match. तो it was a pleasure. Wife को बोल दिया, this is the things to come for you. Right. You will have to bear all this. तो हम लोग आया return, cutting down the honeymoon trip, and I went to Goa, and it was the first time that Roger Binney was leading Goa. Okay. The match got over. I had a good colleague by the name Suresh Dev from Maharashtra. He said, "Don't worry, it's like a time shield match. Just think and do the umpiring." मैं बोला ठीक है. And the match got over in less than 3 days. Arshad Ayub was playing, Venkatpati Raju. It was a good side. We did well in that match. Okay. So you remember that match with a lot of fond memories, fondness. Yes, especially Goa, if I had a chance that time, I would have got my wife again to Goa for a cultivation of Ali Bull. You did any Dilip Trophy match? No, I did not do, but I did many matches for the last 27 years for BCCI, and I have not kept a count. When I retire, I'll sit one down to keep a count. Okay. So a lot of Ranji Trophy matches. So traveling and all, how it's Earlier, it was very difficult to travel. It was a big headache. In fact, it's sad to tell you that we traveled next to the bathroom of the railway. That compartment with a blanket and all, because BCCI used to give us information 3-4 days earlier, and we could not say no. And then those mobile phone and all were not there. As soon as we got down at the station, we had to look for a guest house. Where we don't know where we would stay and all. We had to make that arrangement. Then we had a setting that, one day before the match at 4 o'clock, we should meet at the ground. We did not know where our partner was staying. So we used to meet at 4 o'clock at the ground, and then partner used to come from another, used to come in auto, do the matches and all. Now it is totally different. right now it's all over All phone. professionally done. You get a car pickup, a 5-star stay, you know who is the partner, and then you coordinate with him. You stay in a single room. What is And the role of an observer actually? actually, they called in earlier matches, BCCI, they called it match referee. In MCA, they call it as the observer. Okay. We go to observe, we see that the umpiring, how the umpire does umpiring, we give him tips at the end of the day. The captains, whether their behavior is good, the ground facilities. Okay. Actually, a lot of things are there, small, and we do at the end of the day, we report to the Mumbai Cricket Association. Marcus sir, I was listening to you mentioning about Sachin sir and Vinod's episodes. See, Sachin was a more serious type of a cricketer than Vinod, I suppose, and which he has proved in the years to come. So I want to know what Achrikar sir saw special in Sachin, because I just remember one match. It was a Dadar Mahim tournament, and I was also in that match. One Sridhar Korgakar, Reserve Bank player, a very good all-rounder of his time. He was much elder to us, and 14, 15 players were there.
I was also dropped, and one small boy was also dropped. I took to the scoring, and this boy was crying. And I was just thinking, why is he crying? During the lunchtime, then Achrekar sir came. Achrekar sir had took Sridhar Korkakar to the laundry because she dropped him, and then he took him. What special did he see him in this boy? That is the question that has been hammering me for some long time. I just want to know that from a person who has known Sachin very closely. Actually, what Acharkar did was, Acharkar had that scooter with that what they call, they have no Sidecar. sidecar. So he used to travel with that. And Acharkar used to call up, he had many clubs in Bombay, Acharkar sir. So he used to think somewhere there is 50 for 5. He used to put Sachin there from this ground to the ground where this is 50 for 5. And the Sachin used to score some 80, 90. The score is to be there 120 for 6 or 7. Somewhere else, it is some, what's the score? 30 for 3. You leave this match. There they used to play with 10 players. There again Sachin used to score there. He used to use him as a trump card. Sure guarantee was there that if I take Sachin from here to there, in what advantage Sachin had, what in a day to play 2-3 matches on different pitches with different players, different fielders. That made him very strong. And he knew that I have to perform because Acharikar is depending, sir is depending on me. Marcus, you have such a long journey as an umpire in Indian conditions and all. Have you been to outside countries like, say, county cricket or Australia, or can you have you do you have some experience there? I have been to Yorkshire to the courtesy of Iqbal Khan, who played for Bombay, off spinner. Yeah, very good all rounder. He hosted me for nearly 2, 3, 4 months at his house, and then I do matches in Yorkshire. I like the every year season to go there and spend even when the off season is there in India. Okay, okay, very good. You mean to say Iqbal Khan, who I know that he used to get contract in Yorkshire, and he would call you to there and do umpiring there. Yes, Yes, and you used to share the room with Iqbal. he has a big house. He's doing very well there now. He's settled there in Yorkshire, Okay. and he's doing very well. So he used to host me, he'll take care of me. While Saturday, Sunday, I used to go and do matches. Marcus, sir, you're also a founder of the Association of Cricket Statisticians and the Scorers of India, and you're a president. How did that start? वो जरूरत क्यों लगी कि आपको ऐसे कुछ इनिशिएटिव शुरू करने चाहिए और ऐसा कोई इनिशिएटिव ऑन द फर्स्ट प्लेस होना चाहिए, ये जहन में कब आ गया? Actually, there was an association being formed for the umpires in Bombay, where the test umpire Ahmed Mamsa's brother was involved. He was I am Mamsa. So I was along with them, and I saw them how they worked hard to form this association of cricket umpires. So I said, everybody is doing everything for umpires. Why not we do something for the scorers? So somebody told with the scorers, it's a part of the statistics also. So involve the statistician also. So I and my friend Shirish Konkar, we both started thinking on this. Let's form a association. We used to attend Vijay Merchant listeners meeting. Vijay Merchant used to have a radio program every Sunday afternoon, 1:30 p.m. and the listeners were invited at his office to discuss cricket. So we used to attend that, and we said now these meetings will get over. Let's form something where we can also meet on statistics and scoring. So we founded this association, and this year, last year during the election, I was elected as the president. It's going on well, but still is not as active as we wanted it to be. Well, so anything that you're doing it to make sure it is getting activated or it is running the way you want it to do it. Actually, we wanted to train a lot of scorers, to do into scoring, because now scoring also is a good job like umpiring. There is also good money from BCCI. But lot of state association also are conducting classes and scoring
exams and all. So we don't want to interfere in that. Otherwise, they will think that why is this private people doing it? So it's going on, and we have a every quarterly magazine called as Ank. It's a Marathi name, figures, Yeah, Ank. Ank. So we spell it A-N-K, Anka. People call it Anka. So since A-N-K would be Ank, it was founded by, वो pronunciation पे भी depend करता है कि yes, कौन कैसा pronunciation कर रहा है yes, and things like that. But one good thing that we have seen recently, that now a lot of women umpires have started doing a lot of these international matches that we are watching, and it's a very proud moment for every one of us, in fact, that BCCI has started this gender equality initiative, and that initiative was very well received as well, because it's very important that we have that gender equality. And a lot of these young um, you know girls or women's, they want to also become umpire. But what are your thoughts on that? How good this initiative is? very good initiative and good uh, career also is there for the women umpire. Earlier we had in Mumbai also women umpire once in 10 years, 5 years coming. But then after marriage and all, those people, house people used to not allow them to do umpiring and all. Now it's a different ball game totally. BCCI also is encouraging them, having classes for them, training them well. And we have good Vrindar Rati and all doing very well at international level also. But now I think most of the youngsters or most of these aspiring professionals who wants to become umpire or want to become scorers, what are my easy uh, ways of getting registered, or if anything you can tell us that how to get registered, where to get registered, and after that what is the procedure? Does that registration also includes tutorials in that? Does it include some training sessions into that? How is it? There are state conducting exams. First, the scorer who wants to be a scorer should start scoring. Looking at the TV also, she can start scoring at home from home. Then she has to go for different matches. Lot of matches are being played, and once that practice comes, and when the opportunity comes to appear for the exam, she should grab the opportunity, pass the state level exams, and then appear for the BCCI exams. और ये information कहाँ मिलता है? Yeah, on the website only. She has to find out little on her own on the different. Suppose she is from Bombay. हाँ, इवन फॉर मेन फॉर विमेन, ये सबके लिए है। जिसको स्कोरर बनना है तो मुझे ऑनलाइन ढूंढना है कि कोर्सेज अवेलेबल है। बट ये क्या एमसीए ये कोर्सेज अवेलेबल आपको करा के देता है, या बीसीसीआई का कोई इनिशिएटिव है? कैसे उसको अप्लाई करें? You can't go directly to BCCI, so you have to start from local. Once Okay. you are doing local matches, then you go for the state exams. Like you are from Mumbai, so you'll have to ask on the Mumbai Cricket Association when are the exams going to be held for the scorers. Once you clear that, you give some surveys, then the BCCI will conduct exam. So you then qualify for that. कभी कभी ऐसे लगता है कि ये डिसीजन अनफेयर है, एंड Samuel Toffel himself said that कि when you give a decision that abides by the law of cricket, it is also sometimes questioned, or it is created a controversy, and then people go in for the spirit of the game, the support of the game, but eventually an umpire's job is to make a decision. What would you say on that? Actually, at that time, no, what we make it. It may be a mistake also or error also. It is later on, postmortem and all is done. That time we find out, and then they change the laws every year. Every year the laws are changing because of the incidents which are not covered by the law, and it goes on, and it will keep on going. Well, thank you so much for spending quality time with us today on this podcast. बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने मिला, काफ़ी आपको क्लोजली भी समझने मिला, और आई एम श्योर कि बहुत सारे यंगस्टर्स को ये मज़ा आने वाला है ये एपिसोड सुनने के लिए, ये पॉडकास्ट सुनने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एज आई सेड राइट इन द फर्स्ट,
of this podcast that decision making is simple, and if you want to get the right mentor, Marcus sir is the gentleman for you, who will make you explain each and everything, the minutest of the detail that sir has always paid attention to. No doubt, when he passed the exams, first he failed, so failure will come first before the success. He might have failed the first exam, but after that, his work of 42 years is itself a testimony and an inspiration to many of these youngsters and people like us and everyone. Thank you so much once Thank you. again, It was sir. my pleasure and all the best. Reach 100 episodes and I will come again. देखो 100 एपिसोड के बाद में 101वां एपिसोड फिर से मार्कस सर आएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कमिट कर दिया है. Meanwhile, you guys just enjoy and I hope you like it. If you like it, like, comment, share, subscribe.